السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں سید محسن سر. فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف محسن سر آئی کلاسز. یہ ویڈیو خاص طور پر ہم جے کے پی ایس سی مینس 2026 اردو آپشنل کینڈیڈیٹ کے لیے بنا رہے ہیں. جے کے پی ایس سی مینس اردو آپشنل کے لیے ہمارے پاس آنسر رائٹنگ کورس اویلیبل ہے اور فل لینتھ ٹیسٹ سیریز بھی اویلیبل ہے. ساتھ میں اگر سے آپ فریشر ہیں اور 2026 یو پی ایس سی جے کے پی ایس سی 2027 یو پی ایس سی جے کے پی ایس سی کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کوچنگ کلاسز بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو میں ابھی جو جے کے پی ایس سی مینس 2026 اردو آپشنل آنسر رائٹنگ کورس جو ہم 10 فروری سے چلا رہے ہیں اس کے کوشچنس آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جو ہمارے ڈیلی آنسر رائٹنگ کا حصہ ہے. دیکھیے مینس میں سب سے امپورٹنٹ ہے آنسر رائٹنگ. آنسر رائٹنگ میں بھی امپورٹنٹ ہے ڈیلی آنسر رائٹنگ. ڈیلی آنسر رائٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس سے آپ کو سیم ڈے فیڈ بیک مل جائے گا, آپ کا کنٹینٹ امپروو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کی لکھنے کی صلاحیت ایک دن سے ہی سدھرنا شروع ہو جائے گی اور لکھتے لکھتے کافی بہتر ہو جائے گی. دین یو کین اسکور 300+ مارکس ان جے کے پی ایس سی. اس سے پہلے بھی میری مینٹرشپ میں الحمدللہ 2021 اور 22 میں 5 ایسپرنٹ نے 300+ اسکور کیا. 5 ایسپرنٹ نے جے کے پی ایس سی میں. ٹھیک ہے. تبسم اقبال ان میں سے ایک ہے, بنت الشوکت, نذیر بیجران, ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو 300+ اسکور کیے ہمارے ٹیسٹ سیریز آنسر رائٹنگ یا کوچنگ کلاسز کا حصہ ہوتے ہوئے. تو اگر سے آپ فریشر ہیں تو ضرور ہمارے کوچنگ کلاسز, اور اگر سے آپ مینس کے ایسپرنٹ ہیں تو آنسر رائٹنگ پلس ٹیسٹ سیریز جوائن کیجیے. یہاں پر ہمارے کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں, آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے ہمارے کلاسز کے لیے. محسن سر آئی کلاسز ٹیسٹ سیریز کے لیے 9967754309 9515545571. جیسا آپ لوگ جانتے ہیں میں نے خود یو پی ایس سی کے 5 مینس دیے, اردو آپشنل سے 5 مینس دیے میں نے, اور انٹرویو بھی دیا الحمدللہ. مارچ 2020 میں انٹرویو بھی دیا. اس کے بعد سے لگاتار میں اردو آپشنل پڑھا رہا ہوں یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی کے لیے. ابھی تک میں نے 7 بیچز کور کر دیے, 7 بیچز کو پڑھا دیا ہے اردو آپشنل, اور ساتھ میں نے ایم اے اردو بھی کر رکھا ہے, اور تلنگانہ سیٹ جو ہوتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر کا وہ بھی کوالیفائی کر رکھا ہے. تو آپ کو بہترین نمائندگی یہاں سے رہنمائی مل جائے گی الحمدللہ. تو آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, اردو آپشنل لیں. جس طریقے سے یو پی ایس سی میں بھی ادیبہ انم نے, نذیر احمد بجران نے آئی ایس رینک حاصل کیا, یہاں پر آئی آر ایس رینک حاصل کیا. ٹھیک ہے. تو اردو آپشنل سے کامیاب ہونے والے یہ ایسپرنٹس ادیبہ انم, نذیر احمد بجران میرے ہی پاس ٹیسٹ سیریز آنسر رائٹنگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جے کے پی ایس سی ایسپرنٹس کے لیے کورس لانچ کر چکے ہیں, جے کے پی ایس سی مینس اردو آپشنل. آپ ضرور جوائن کریں ہمارے کورس کو. ٹھیک ہے. تو ابھی میں ڈیلی آنسر رائٹنگ کے جو کوشچنس ہیں وہ سامنے رکھ رہا ہوں, دیکھیے آپ لوگ. تو یہ ڈے 16 کا کوشچن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ڈے 16 کا ٹاپک چل رہا ہے جو ہے باغ و بہار. باغ و بہار پیپر 2 میں ایک داستان ہے جس کو ہمیں پڑھنا بھی پڑے گا, پوری داستان, اس کی کہانی,
इवेंट्स, कैरेक्टर्स तो पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, सवालात आते हैं, उसके आंसर्स भी लिखना होगा। ठीक है, 10 मार्कर के लिए, 15 मार्कर के लिए, 20 मार्कर के लिए आंसर भी लिखना होगा। और तशरीह पाठ आती है, तशरीह पाठ भी आती है 20 मार्कर के लिए JKPSC में, वो भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर आप मेरे क्वेश्चंस देख सकते हैं जो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए देता हूं। तो बागो बहार के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए पहला सवाल है, बागो बहार का जायजा दास्तान गोई के फन की रोशनी में। JKPSC में इसी तरीके के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर आपको 20 मार्कर के लिए सवाल दिया गया है, 14 मिनट में आपको लिखना है, विद इन 200 वर्ड, यानी 3 से 4 पेजेस के अंदर आपको लिख देना है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक के लिए आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो थोड़ा सा अंदाजा देता हूं मैं आपको। बागो बहार का जायजा दास्तान गोई के फन की रोशनी में आपको लेना है। तो पहले पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, ये बागो बहार क्या है, 3-4 लाइन में आप बता देना है कि बागो बहार मीर अमन दहलवी की तस्नीफ कुर्दा किताब है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में 1802 में लिखी गई। ये किताब अता हुसैन तहसीन की नौतर्ज मिर्जा का आसान और आम फहीम उर्दू में तर्जुमा है, और इस किताब ने आसान आम फहीम उर्दू नस्र की बुनियाद डाली। बस ये पहले यहाँ पर इंट्रो में दे देंगे, क्योंकि ये जब डबल कोट में देता है कोई भी टॉपिक का नाम, तो हम उसको पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर जो सवाल है उसकी आप सब हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ पर सब हेडिंग डालना, बागो बहार दास्तान गोई के फन की रोशनी में, या बागो बहार का जायजा दास्तान गोई के फन की रोशनी में। तो दास्तान गोई के फन की जो खुसूसियात होती है वो चेक करना आप। जैसे दास्तान के फन में क्या होता है, किस्सा सुनाने का फन, किस्सा सुनाने का फन कितना कामयाब है यहाँ पर बताना। फिर किस्से में तवालत होना लाजमी है, किस्से में किस्सा जुड़ाया जाता है। किस्से में तजस्सुस, दिलचस्पी का सामान, वाकयात बड़े हैरत अंगेज अंदाज में पेश किए जाते हैं, वो भी बताना है आपको। और देगर पॉइंट्स पर आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से जायजा लेना होता है, मिसालें देते हुए आप आंसर लिखेंगे सर। फिर दूसरा सवाल है यहाँ पर, बागो बहार की असलूबियाती खुसूसियात का तनकीदी जायजा लेना है। तो मीर अमन ने जो तहरीर अपनाई है, तर्ज तहरीर अपनाई है, उसे असलूब कहते हैं, मीर अमन का असलूब। उसके बारे में, उनके खुसूसियात के बारे में आपको बताते हुए इसका तनकीदी जायजा भी लेना है। तो बहुत सारे उर्दू के नकादों ने इनकी तहरीर को, इनके असलूब को सराहा है, आप वो भी उनके नाम भी लिखेंगे। जैसे मौलवी अब्दुल हक भी कहते हैं, मीर अमन का उर्दू नस्र में वही दर्जा है जो मीर तकी मीर का उर्दू शायरी में, कि इन्होंने आसान आम फहम जबान की बुनियाद डाली। फिर उसके बाद इनके असलूब की खुसूसियात बताएंगे, आम फहम जबान, आम और सादा व आसान शेरी वसाइल जैसे तजबियात, इस्तिआरात, रियायत लफ्जी का इस्तेमाल, मुहावरों का, ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल, किरदार के जज्बात की अक्कासी, ये पूरे खूबियां बताते हुए बताएंगे। फिर जो लिमिटेशंस है तनकीदी जायजा लेते हुए भी कह देंगे, इनके यहाँ पर चंद मतरूक अल्फाज भी मिलते हैं, कवायद की पाबंदी नहीं की गई, और चंद और खामियां मौजूद है, बताते हुए आप निकल जाएंगे 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, 11 मिनट में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको सवाल दिए जाते हैं हमारे पास। तो डे 1 में इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखकर भेज देना है। सेम डे करेक्शन हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा। आप फिर उसके बाद अगले दिन का सवाल जवाब लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है ये नेक्स्ट डे। तो बागो बहार के टॉपिक को हम 2 दिन प्रैक्टिस करा रहे हैं, डे 16 एंड डे 17। देखिए, फिर बागो बहार पे आपको एक सवाल मिलेगा, बागो बहार की अहमियत, बस ये सवाल है। मजीद अहमियत में खासतौर पर तारीखी अहमियत, तहजीबी अहमियत और अदबी अहमियत पर आप लिखेंगे 20 मार्क के लिए। देन
तशरीह वाला सवाल भी देना पड़ता है आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए तशरीह भी आती है JKPSC में। ठीक है, तशरीह भी करना है आपको दिए गए इख्तिबास की, वो भी सियाक व सबाक के साथ और अदबी मुहासिन बताते हुए। जैसे एक इख्तिबास लिया हूं मैं यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है बागो बहार से लिया गया है। ऐ बैरंग तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मोई मिट्टी की निशानी है, तेरे आने से मेरा कलीजा ठंडा हुआ। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ, तूने मुझे निहाल किया। लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठे रहना इनको लाजिम नहीं। जो मर्द निकट्टू होकर घर सीता है उसको दुनिया के लोग ताना मोना देते हैं, खुसूसन इस शहर के आदमी वगैरह वगैरह जो भी है। अब इस पैराग्राफ से पहले आपको सियाक व सबाक लिखना होता है, तो पहले 4 या 5 लाइन का आप सियाक व सबाक लिखेंगे। सब हेडिंग डाल सकते हैं आप, ऐसा सियाक व सबाक डालिए, फिर लिखिए क्या लिखना है। दिया गया इख्तिबास मीर अमन की किताब बागो बहार से लिया गया है, जो इस किताब के हिस्से शहर पहले दरवेश से लिया गया है। फिर बताना है कि भाई पहला दरवेश कौन था, उसके साथ क्या वाकया आया कि वो उसकी बहन के घर पहुंच गया। तो हमें पता है कि वो अपनी माँ बाप की दौलत को जुए में लुटा देता है और कंगाल होकर बहन के घर आ पहुंचता है। फिर बहन उसे यहाँ पर नसीहत करती है, तो ये पैराग्राफ वहां से लिया गया है जहां पर बहन नसीहत कर रही है। फिर इसकी तशरीह करेंगे आप और इसके अदबी मुहासिन पर भी आप लिखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हिंदुस्तानी तहजीब एक बहन अपने भाई को नसीहत करते हुए नजर आ रही है, उसके जज्बात की अक्कासी हो रही है और उसके लिए जो अल्फाज और मुहावरे और रियायत लफ्जी का इस्तेमाल किया गया वो मिसालें बताएंगे। जैसे तूने मुझे बाग बाग किया, तूने मुझे निहाल किया, ये जो भी है रियायत लफ्जी है। और मेरा कलीजा ठंडा हुआ मुहावरा है, जो मर्द निकट्टू होकर घर सीता है मुहावरा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी नस्ल को दिलचस्प बनाया, आम फहम बनाया, वो सब भी आप मिसालें लिखते हुए। और साथ में उर्दू के नकादों ने इनकी उस असलूब के ऊपर जो कहा वो भी ऐड करेंगे। इस तरीके से आप पूरी तशरीह कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका तशरीह वाला पार्ट भी। तो फिर से बताता चलूं, उर्दू ऑप्शनल बहुत अच्छा ऑप्शनल है, यूपीएससी के लिए भी और JKPSC के लिए भी। आप जरूर ज्वाइन करें, हमारे कोचिंग गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। ठीक है, और हमारे दिए गए नंबर्स आप सेव कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, तो इस वीडियो को आप खुद देखें, देकर उर्दू ऑप्शनल एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं, शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।